Good afternoon, everyone. In today's lecture, we are going to discuss Indian Evidence Act. We will discuss how the Act has been drafted, and I will be giving you some tips and tricks with the help of which you can remember each and every section of Indian Evidence Act. But then before starting with the Act, let us discuss the very basics first, like we usually do. See, when we talk about laws, we categorize laws under two heads. The first is the substantive law and the other is the procedural law. Right? तो एक है आपके substantive laws और एक है आपके procedural laws. जब हम बात करते हैं substantive laws की, substantive laws are those laws which determine your rights and liabilities. और इन्हीं राइट्स और लायबिलिटीज को इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास प्रोसीजरल लॉज हैं. So laws, as we can categorize under two heads, one is substantive and the other is procedural. We have some examples if I give you of substantive law like Indian Penal Code, Indian Contract Act, Hindu law, Muslim law, Transfer of Property Act, Law of Torts which is uncodified. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सब्सटैंटिव लॉज के. अब आपको एक मैक्सिम पता ही होगी, यूबी जस इबी रेमीडियम. एंड व्हाट डज यूबी जस इबी रेमीडियम मीन? यूबी जस इबी रेमीडियम मीन्स वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. तो अगर आपको लॉ ने राइट्स दिए हैं पर उन्हें इन्फोर्स कराने के लिए आपके पास लॉ नहीं है, तो उन राइट्स का भी कोई मतलब नहीं बनता. So that is the reason why with substantive laws we have the procedural laws which will help us to attain or to establish our rights which has been violated or infringed by another individual. तो जब हम आईपीसी की बात करते हैं तो ये सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस से डील करता है. सो इफ सम ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट यू, तो आपके पास प्रोसीजर है जो लेड डाउन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में. राइट? अगर आपको किसी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल करनी है तो आप सीधा मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, ऐसा लिखा है सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी में. अगर आपको किसी के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करानी है तो आप जाएंगे सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली the offense needs to be cognizable in nature. So all that is dealt in CRPC. But then when we talk about the civil laws, जैसे ये तो criminal हो गया, अगर हम civil laws की बात करें कि अगर contract breach हुआ है या parties को divorce चाहिए या मुस्लिम लॉ में वाइफ को मेंटेनेंस चाहिए या प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है या आपके साथ कोई टॉर्ट्स कमिट हुआ है, लेट इट बी न्यूसेंस और नेग्लिजेंस or trespass, be it any kind of tort which has been committed against you, तो आपका जो procedure है ना, that is laid down in civil procedure code, right? So where there is a right there is a remedy. तो हम यहाँ पे substantive laws और procedural laws को hand in hand लेकर चलते हैं. So why we are discussing this? Because the subject of today's discussion is Indian Evidence Act. So let me tell you here that Indian Evidence Act does not create any right. So that is why this is not substantive law. It is a procedural law. It is a procedural law. अच्छा, अब यहाँ पे देखो, क्रिमिनल मैटर्स के लिए सीआरपीसी है, सिविल मैटर्स के लिए सीपीसी है. तो प्लीज ये मत समझिएगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट सिविल लॉ के लिए अलग है और क्रिमिनल लॉ के लिए अलग है. इंडियन एविडेंस एक्ट में जितने भी रूल्स लेड डाउन है वो सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों को ही अप्लाई करते हैं. राइट? सो वी हैव वन यूनिफॉर्म लॉ फॉर सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस व्हेन इट कम्स टू गिविंग एविडेंस. राइट? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? Okay, then proceeding further,
Indian Evidence Act has only, it is divided into 3 parts, 11 chapters, and it has 167 sections only. तो इंडियन एविडेंस एक्ट में सिर्फ 3 पार्ट्स हैं, 11 चैप्टर्स हैं एंड 167 सेक्शंस हैं. सो वी हैव different chapters in one part and those chapters contain many sections, right? So I will show you the Bare Act also. पर आप अभी ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे सिर्फ 3 पार्ट्स, 11 चैप्टर्स और 167 सेक्शंस हैं. अगर मैं इसे कंपेयर करूं बाकी लॉज से, तो सीआरपीसी में आप पढ़ते हैं 484 सेक्शंस, आईपीसी में आप पढ़ते हैं 511 सेक्शंस. तो in comparison to the other laws, we here have only 167 sections in Indian Evidence Act, right? अच्छा, अब यहाँ पर एविडेंस, अब सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है. देखिए यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, राइट? तो 1872 का एक और एक्ट है विच इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. So Indian Evidence Act and Indian Contract Act, these two acts have two things in common. The very first thing which is common between these two acts is that this is drafted by the same person. तो एविडेंस एक्ट को भी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी जिसने ड्राफ्ट किया, द ड्राफ्ट्समैन ऑफ एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट इज द सेम. और वो कौन है? इट इज सर जेम्स फिट्स जेम्स स्टीफन. तो क्या नाम है उनका? सर जेम्स फिट्स जेम्स स्टीफन. तो आप ऐसे ही याद रखेंगे, सर जेम्स फिट्स जेम्स स्टीफन, राइट? अच्छा, और दूसरी क्या सिमिलैरिटी है? 1872 में आया आपका एविडेंस एक्ट और 1872 में ही आपका आया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. So the draftsman is the same and the year of enforcement is the same. अब यहाँ पर I don't remember the date of enforcement of Indian Contract Act clearly. I think it is 1st September 1872 only. क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट का अगर आप डेट ऑफ एनफोर्समेंट देखें, it is 1st September 1872. Please see, it came on 1st day of September 1872. So I think this is the same date which is shared by Indian Contract Act as well. So there are 3 similarities then. That this is drafted by the same person, this came into force on the same date, and also same date. Okay, just check it, Indian Contract Act, and also the year of enforcement is the same, right? Okay. Then coming to Indian Evidence Act. Now see, Indian Evidence Act is based on 3 golden principles. So there are 3 golden rules which you have to keep in mind while dealing with Indian Evidence Act. And what are those 3 golden rules? Those 3 rules are, the very first is that the evidence must be confined to the matter in issue, right? The second is the best evidence must be given in all cases, correct? And the third rule is hearsay evidences are not admissible, correct? So these are the 3 rules of evidence on the basis of which we are going to discuss the whole Evidence Act. देखिए, अब मैंने यहाँ पर सबसे जो पहला रूल बताया, that is evidence must be confined to the matter in issue. Now when I say this, so we first need to understand that what is a matter in issue, right? The term which we use here in Evidence Act is fact in issue. आप इसे fact in issue कह दीजिए, आप इसे matter in issue कहिए, it's one and the same thing. तो matter in issue अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में बताऊं तो इसका मतलब है कि मुद्दा क्या है पार्टीज के बीच में, राइट? एज वी ऑल नो
that the party who approaches the court in civil matters it will be the plaintiff and in criminal matters it will be the complainant, right? और अगर हम स्टेट के थ्रू गए हैं तो स्टेट हो जाता है कंप्लेनेंट उस केस में। तो यहाँ पर जो भी प्लेंटिफ ने या क्रिमिनल मैटर्स में कंप्लेनेंट या स्टेट ने जो भी एलिज किया है, राइट जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सिविल और क्रिमिनल दोनों का दूंगी। Like in civil matters, if this person A approaches the court of law and says that B has made a breach of contract or B has made a breach of the contract which was there between the two of us. तो यहाँ पे A की allegation क्या है B के against? That he made a breach of contract, right? लेकिन यहाँ पर B, the defendant, in his written statement, he says he denies the very existence of a contract between the two of them. यहाँ पर B कहता है कि हमारे बीच में तो कभी कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। तो B ने क्या क्वेश्चन किया? द वैलिडिटी और द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू ऑफ देम। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ही क्वेश्चनेबल हो गया। तो यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट B के अकॉर्डिंगली नहीं है, सो ऑब्वियसली ही इज डिनाइंग दैट देयर वाज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो यहाँ पर कोर्ट के सामने क्या क्वेश्चंस अराइज हुए? सबसे पहला क्वेश्चन जो कोर्ट डिटरमिन करेगा वो होगा वेदर देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन, इफ देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू ऑफ देम वेदर देयर हैज बीन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। So these two questions which the court has to determine, which is alleged by one and denied by another, these are the facts in issue, these are the matter in issue, right? तो ये हो गया matter in issue। अब मैंने आपको क्या रूल बताया पहले? that evidence must be confined to the matter in issue, which means कि जो आपका मुद्दा है, मैटर इन इशू है, उसी से रिलेटेड आप एविडेंसेस दे सकते हैं। यू आर ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू गिव एविडेंसेस ऑफ द फैक्ट्स विच आर नॉट रिलेटेड टू द मैटर इन इशू। आई गिव यू एन एग्जाम्पल हाउ। अब जैसे इसी केस में यहाँ पर जो क्वेश्चन इन इशू है, जो मैटर इन इशू है, दैट इज ओनली रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। Now whether A is married or B is not married, does this really matter here? क्या इसके एविडेंसेस देने की जरूरत है? The answer is no. क्या यहाँ पर A की एजुकेशन कितनी है या B की एजुकेशन क्या है? Does it really matter? The answer is no. A के फ्रेंड्स कौन है, एनिमीज कौन है, B के फ्रेंड्स कौन है, एनिमीज कौन है, क्या ये मैटर करता है? The answer is no. तो अब आप इस बात को समझिए कि एविडेंस सिर्फ उन्हीं बातों का दिया जाएगा जो मुद्दा है कोर्ट के सामने। तो यहाँ पे मुद्दा है ओनली इन रिलेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्रीच ऑफ इट। तो यहाँ पे एविडेंसेस सिर्फ इन्हीं दो मैटर इन इशू, इन्हीं दो फैक्ट्स इन इशू से रिलेटेड दिए जाते हैं। ये क्लियर? ओके, नाउ वन मोर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर। अब जैसे मैंने कहा फैक्ट इन इशू, अब देखो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड, फैक्ट इन इशू का मतलब द क्वेश्चन विच द कोर्ट हैज टू डिटरमिन। तो आपको पता होगा ना, सिविल केसेस में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होता है, क्रिमिनल केसेस में चार्ज फ्रेम किया जाता है। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो जब फैक्ट इन इशू है तो उससे रिलेटेड ना बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। दे आर इनन्यूमरेबल फैक्ट्स कि ए जो है वो बी के घर गया था। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ए बी के घर कितनी बार गया था डज नॉट रियली मैटर, है ना? तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लाइक उनकी एजुकेशन से रिलेटेड या उनके मैरिज मैट्रिमोनियल उनके रिलेशंस कैसे हैं, वो उन सब चीजों से रिलेटेड। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं ये रेलेवेंट नहीं है। सो दैट मीन्स फैक्ट्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज रेलेवेंट और द फैक्ट्स कैन बी इररेलेवेंट, राइट? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है that how are we going to determine whether the fact is a relevant fact or not? How are we going to determine that? Fact relevant है या नहीं, इसका टेस्ट सेक्शन 5255 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में लेड डाउन है। अगर आप देखो इंडियन एविडेंस एक्ट
you will clearly see the index pages only I'm showing. Chapter 2 talks about of the relevancy of facts. In fact, part 1 of Indian Evidence Act talks about the relevancy of facts. अब पार्ट 1 में इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 1 से लेकर 55 तक कवर्ड है, जिसे हमने डिवाइड किया फर्दर 2 चैप्टर्स में, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. एक है प्रिलिमिनरी पोर्शन और एक है आपका रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स. दिस इज फ्रॉम सेक्शन 1 to 4 एंड दिस इज फ्रॉम सेक्शन 5 to 55. तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि फैक्ट रेलेवेंट है या नहीं. तो फैक्ट रेलेवेंट है या नहीं ये हमें बताएंगे सेक्शन 5 से लेके 55 में जितने सेक्शंस हैं, अगर उसमें हमारा फैक्ट फॉल कर गया ना तो इसका मतलब हमारा फैक्ट रेलेवेंट है. ये क्लियर हुआ. सो द फैक्ट इज गोइंग टू बी रेलेवेंट ओनली इफ इट फॉल्स within the purview of sections 5 to 55 of Indian Evidence Act. ये क्लियर. ओके, देन प्रोसीडिंग फर्दर, तो जो फैक्ट्स इसमें नहीं फॉल करेंगे वो हैं इररेलेवेंट फैक्ट्स, राइट. ओके, तो अब फैक्ट्स रेलेवेंट हो गए. अब एक और डोर है जिससे फैक्ट्स को गुजरना है एंड दैट इज द एडमिसिबिलिटी. एंड दिस एडमिसिबिलिटी is decided by the court of law. तो इसका मतलब कि फैक्ट इन इशू, समझना कि जो मुद्दा है उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं. फैक्ट्स में से पहले हम रेलेवेंट फैक्ट्स पिक करेंगे और रेलेवेंट फैक्ट्स में से हम एडमिसिबिलिटी चेक करेंगे. इज इट क्लियर. तो ये सारी चीजें जब हम डिटरमिन कर लेंगे ना तो अब हमें पता चलेगा कि भाई हमें एविडेंस किस चीज का देना है. सो वी हैव टू गिव द एविडेंस ओनली ऑफ द फैक्ट इन इशू, और उन फैक्ट इन इशू से रिलेटेड जितने भी आपके फैक्ट्स रेलेवेंट हैं उन्हीं का एविडेंस दिया जाएगा, इररेलेवेंट फैक्ट्स का नहीं. ये क्लियर. तो अब आप देखो हाउ द एक्ट इज ड्राफ्टेड. See, I've just told you here that part 1 talks about the relevancy of facts, right? अब relevancy of facts में chapter 1 है preliminary. किसी भी act में section 1 always talks about short title, extent and commencement, right? section 2 इसका repealed है by the repealing act, और जिस repealing act ने इसे repeal किया था उसे बाद में खुद ही repeal कर दिया था. So, but then that does not mean that section 2 has come back into existence. So section 2 is repealed. Section 3 talks about the interpretation clause. आपको पता ही है कि सारे एक्ट में डेफिनेशन क्लॉजेस मेंशन्ड होते हैं. तो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 में आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज है कि फैक्ट क्या है, रेलेवेंट क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, एविडेंस. ऑल दीज टर्म्स आर टू बी लर्न्ड. Section 4, very important. It talks about may presume. It talks about the presumptions. Presumptions का मतलब कि आप किन चीजों को मान के चलेंगे और किन चीजों को आपको मानकर ही चलना पड़ेगा. So these are the presumptions which are laid down. और इसका जो लॉट है वो है सेक्शन 79 से लेके 90A एंड ऑल्सो सेक्शन 11A to section 114A. These sections talk about presumptions. Now let's see. एक बार साथ साथ देख भी लेते हैं. अगर आप सेक्शन 79 देखें, presumptions as to documents की बात की गई है. तो 79 से लेके 90A तक जितने भी सेक्शंस हैं उसमें आपका जो काम है ना वो सिर्फ क्या है कि शैल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम कहाँ और किन सेक्शंस में लिखा हुआ है ये आपको याद होना चाहिए. सो दिस यू कैन इजीली मेंशन, राइट. उसके बाद मैंने आपको एक लॉट बताया 111. अब आप देखो 111A से लेके 114A तक ये सब डील करता है प्रिजम्पशंस से. तो प्रिजम्पशंस का मतलब यहाँ पर भी कि जैसे यहाँ पे कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी है, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ है और प्रिजम्पशन एज टू रेप है. सो ऑल दीज आर प्रिजम्पशंस व्हिच वी आर गोइंग टू डील विद, राइट. तो प्रिजम्पशंस में प्रिज्यूम है, शैल प्रिज्यूम है और कंक्लूसिव प्रूफ है.
तो जहां पर मे प्रिज्यूम है इसका मतलब है कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो माने या ना माने। पर अगर एक बारी कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है दैट बिकम्स अ रिबटेबल प्रिजम्पशन, दैट इज अ रिबटेबल प्रिजम्पशन। और कोर्ट अगर नहीं भी मानता देन इट इज अ इररिबटेबल प्रिजम्पशन। टॉकिंग अबाउट शैल प्रिज्यूम, तो शैल प्रिज्यूम का मतलब है लाइक यू नो इफ आई गिव यू एन एग्जांपल हियर, जब हम बात करते हैं प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन, तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में ना यहाँ पे मे प्रिज्यूम लिखा है, और जब हम डाउरी डेथ की बात करते हैं तो यहाँ पे शैल प्रिज्यूम लिखा है। तो 113A में कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि कोर्ट ये मान के चल भी सकता है और नहीं कि जो अबेटमेंट हुई है सुसाइड की वो उसके हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स ने करी है या नहीं, तो दिस इज अप टू द कोर्ट। लेकिन जहां डाउरी डेथ होगी ना वहां पे कोर्ट को ये प्रिज्यूम करके चलना पड़ेगा कि जो डेथ कॉज हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ द हस्बैंड और द रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड, तो वो है शैल प्रिजम्पशन। लेकिन दोनों ही प्रिजम्पशंस रिबटेबल होती हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ओके, देन टॉकिंग अबाउट, ऊपर वापस ही चलते हैं 1 to 4 पे हम थे अभी, तो ये हो गया क्लियर। फिर रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया, दी अदर चैप्टर 5 to 55, जहां पे हम ये डिटरमिन करते हैं whether the facts are relevant also or not. This is 5 to 55. Clear? Okay. Now talking about, अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, like if suppose you know there is a matrimonial dispute between A and B, husband and wife, और यहाँ पर A ने कोर्ट को अप्रोच किया saying that you know B, because B has deserted me, that is the reason why on the basis of desertion I seek divorce from B. तो A क्या चाहता है, वो डिवोर्स चाहता है B से। ठीक है, अब लेकिन B अगर कोर्ट में आकर ये कह दे कि भाई मैंने तो इसे डिजर्ट नहीं करा, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन फैक्ट एंड इशू क्या होगा? यहाँ पे ये नहीं एलिज किया गया कि मैं ए की वाइफ नहीं हूं या हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर यही एलिज कर दिया जाता तो सबसे पहला क्वेश्चन ये डिसाइड किया जाएगा वेदर ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ ऑल्सो और नॉट। पर यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमें डिटरमिन करना है दैट इज वेदर बी डिजर्टेड ए और वेदर ए डिजर्टेड बी। सो दिस इज टू बी डिटरमिन, सो दिस इज द फैक्ट एंड इशू। अब इसी फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड हैं बहुत सारे फैक्ट्स, राइट? तो मैं फिर वही कहूंगी उनकी एजुकेशन क्या है वो मैटर नहीं करती, राइट? तो बहुत सारे फैक्ट्स में से हम रेलेवेंट फैक्ट्स पिक करेंगे और रेलेवेंट फैक्ट्स में से ही हम एडमिसिबिलिटी चेक करेंगे। So all facts which are relevant are not necessarily admissible, but the facts which are admissible are always irrelevant. ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ओके, अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे एक और सिचुएशन ये रखूं कि जब ए ने ये एलिज किया बी के अगेंस्ट कि भाई बी ने मुझे डिजर्ट किया है और इसी ग्राउंड पे मुझे डिवोर्स चाहिए, अब बी कोर्ट में आके ये फैक्ट एडमिट कर ले कि हाँ मैंने ए को डिजर्ट किया है और ठीक है आप डिवोर्स दे दीजिए, तो अब आप मुझे ये बताओ कि क्या ए को ये प्रूव करने की जरूरत है कि बी ने उसे डिजर्ट किया था? नहीं ना। तो यहाँ पर तो ये ओपन एंड शट केस हो गया कि भाई मैंने डिवोर्स के लिए फाइल किया, बी ने कहा हाँ डिजर्ट किया था, तो डिवोर्स विल बी ग्रांटेड। तो नथिंग रियली नीड्स टू बी प्रूव्ड बाय द पार्टीज। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस हियर। अब आप देखो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है पार्ट टू ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। भाई पार्ट 1 में तो आपने 2 चैप्टर्स कर लिए ना, प्रिलिमिनरी जो इंट्रोडक्शन है और चैप्टर 2 में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। लेकिन उसके बाद अब आप इसे प्रूव भी तो करोगे जो फैक्ट्स आप कोर्ट को बता रहे हो। तो कौन से फैक्ट्स? अब लेजिस्लेचर ने, जो ड्राफ्ट्समैन है, उन्होंने आपका जो बर्डन है वो थोड़ा लेसन कर दिया। He has lessened down your burden. How? He has specifically mentioned that these facts need not be proved. अब ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है?
पहले तो आपने बताया कि कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट है, फिर आपने बताया कौन से फैक्ट्स आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो वो फैक्ट्स जो सेक्शन 56, 57 और 58, इसके 3 सेक्शंस हैं केवल, ये आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। तो 56 और 57 तो डील करता है जुडिशियली नोटिसिएबल फैक्ट्स से। एंड व्हाट आर जुडिशियली नोटिसिएबल फैक्ट्स? द फैक्ट्स ऑफ विच द कोर्ट ऑलरेडी हैज जुडिशियल नोटिस। देखो अब पैंडेमिक सिचुएशन है, तो इसे कोर्ट को किसी भी पार्टी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी मच इन नोटिस ऑफ द कोर्ट ऑल्सो। कब लॉकडाउन है, कब कर्फ्यू है, एवरीथिंग इज एविडेंट टू द कोर्ट ऑफ लॉ एज वेल। तो सेक्शन 57 में कुछ ऐसे 13 आइटम्स की लिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको बताया गया है कि इन फैक्ट्स का जुडिशियल नोटिस कोर्ट लेता है। बट रिमेंबर वन थिंग, that the list which is there in section 57 it is not exhaustive, जिसका मतलब है कि और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सेक्शन 57 में इंक्लूड की जा सकती हैं, यानी कि जिनका जुडिशियल नोटिस कोर्ट ले सकता है। ये क्लियर? फिर फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव। भाई जो फैक्ट आपने एडमिट कर ही लिया, जो फैक्ट आपने मान ही लिया, उसे आपको क्यों प्रूव करने की जरूरत है? जैसे जो मेरा दिया हुआ इलस्ट्रेशन डिजर्शन, एक और इलस्ट्रेशन ले लो, जैसे कि मैंने आपके अगेंस्ट केस फाइल करा रिकवरी का, और मैंने कहा कि आप मुझे इतना पैसा ओ करते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप मुझे 10 लाख ओ करते हैं। तो जब आप यहाँ पे कोर्ट के सामने मान जाएंगे कि हाँ मुझे प्रियंका को 10 लाख रुपए देने हैं, तो आई नीड नॉट प्रूव एनीथिंग एल्स बिफोर द कोर्ट। करेक्ट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है ना, ये क्लियर हुआ? ओके। तो फैक्ट जो एडमिट हो गए हैं उन्हें भी प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। टॉकिंग अबाउट इट फर्दर, अब आते हैं हम अपने सेकंड रूल पर। देखिए, तो पहला रूल तो आपको समझ में आ गया होगा, एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इशू। अब दूसरे रूल पे आइए, बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। Best evidence. Now, what is best? How would we know what is best? So, Indian Evidence Act is telling you here what is best. So, if you look into the definition of evidence under Section 3 of Indian Evidence Act, it has already classified evidence under 2 heads. One is oral and the other is documentary. लेकिन oral और documentary ही नहीं, और भी बड़े टाइप के evidences हैं, जैसे कि circumstantial evidences, personal evidences, है ना? तो बेस्ट एविडेंस का मतलब, देखो कोई चीज वर्बली बताना और कोई चीज राइटिंग में शो करना, इसमें ही बहुत मेजर डिफरेंस आ जाता है। सो इफ द पार्टीज हैव द डॉक्यूमेंट्स इन हैंड, राइट, if the parties wish the court to believe in the contents of the documents or the electronic records, तो कोर्ट हमेशा यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही लेकर आओ कोर्ट में। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस। तो जहां पे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेके डिस्प्यूट है, तो अगर ए ये कहता रहेगा कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। कोर्ट अगर वो डॉक्यूमेंट ही, वो कॉन्ट्रैक्ट ही कोर्ट में पेश कर दे, तो इट विल बी फेवरेबल टू हिम, राइट। तो जिस चीज का डॉक्यूमेंट नहीं है उसकी तो खैर बात ही क्या करनी, लेकिन जिस चीज का डॉक्यूमेंट है, लॉ सेज वो डॉक्यूमेंट ही कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। ये क्लियर? बट देन देयर आर सर्कमस्टांसेस जहां पे डॉक्यूमेंट नहीं पेश हो सकता बिकॉज वो गुम चुका है, जल चुका है, या उसी की पोजेशन में है जिसके अगेंस्ट प्रूव करना है। तो वो केसेस हैं सेक्शन 65 में मेंशन्ड। इट सेज केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स मे बी गिवन। देखो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को आप क्लासिफाई कर सकते हो प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में। सेकेंडरी एविडेंस मीन्स a part of it says oral evidence। तो oral evidence कब दिया जा सकता है या उसकी फोटो कॉपी कब दी जा सकती है, तो ऐसा सेक्शन 65 में लिखा हुआ है।
ये क्लियर। एक चीज और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी, सेक्शन 91 टू सेक्शन 100। Section 91 to Section 100 talks about of the exclusion of oral by documentary evidences. See, even this is talking about the same rule कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ना, तो आप ओरल एविडेंस मत दो। लेकिन सेक्शन 91, 92 और बाकी सब सेक्शंस में ये आपको बताया गया है कि ओरल एविडेंस दिया जा सकता है इन दीज सर्कमस्टांसेस। तो सेक्शन 91 में ऐसे 3 केसेस हैं, सेक्शन 92 में ऐसे 6 प्रोवाइजोस दिए हुए हैं जहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं, ओरल एविडेंस भी चलेगा। ठीक है, तो नाउ डिड यू अंडरस्टैंड। अब हमारे पास किसी केस में अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, जैसे सीसीटीवी फुटेज नहीं है या कोई भी चीज नहीं है, बिकॉज यूजुअली जब क्राइम्स होते हैं तो वहां पर या तो विक्टिम और अक्यूज के अलावा यूजुअली कोई नहीं होता। अगर विक्टिम मर चुका है, जैसे हम डाइंग डिक्लेरेशन की अगर बात करें, क्यों डाइंग डिक्लेरेशन को एक सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है, रीजन यही है क्योंकि जो मर चुका है उसके अलावा सीन पर कोई था या नहीं था, दैट रियली हैज अ लॉट ऑफ रेलेवेंस। सो दैट इज द रीजन वाई डाइंग डिक्लेरेशन को सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस कहा जाता है। तो इसीलिए आप ये समझिए कि हमें बेस्ट एविडेंस देना है कोर्ट में with respect to the case in question, and that is why the second rule of evidence law is that the best evidence must be given in all cases. और best evidence oral, documentary, direct, circumstantial तो नहीं है, तो best evidence जो है ना वो पेश करो, ये मतलब है। ठीक है, ये क्लियर। ओके, देन द थर्ड रूल of Indian Evidence Act says, of evidence law says, hearsay evidences are not admissible. देखो, एक गेम है, जैसे आप लोगों ने भी अगर अपने चाइल्डहुड डेज में खेली हो, तो उस गेम का नाम है चाइनीज विस्पर। और चाइनीज विस्पर में क्या होता है, देर इज दिस होल लॉट ऑफ पीपल हु आर देयर, होल लॉट ऑफ पीपल हु प्ले चाइनीज विस्पर। तो उसमें जो पहला शुरू करता है स्टेटमेंट, वो दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और एंड में आते आते उस स्टेटमेंट का बिल्कुल ही कंप्लीट अनदर वर्जन आपको सुनने को मिलता है। तो दैट इज द रीजन व्हाई हियरसे एविडेंसेस आर नॉट एडमिसिबल। सुनी सुनाई बात पे कोर्ट रिलाई नहीं करता। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इफ यू सी सेक्शन 59, लेट मी जस्ट टेक यू टू सेक्शन 59 वंस। सेक्शन 59 टॉक्स अबाउट ओरल एविडेंस, राइट। तो ओरल एविडेंस के लिए देखो यहाँ क्या लिखा है, और सेक्शन 60 भी देखेंगे। इट सेज all facts except the contents of documents or electronic records may be proved by oral evidence। तो यहाँ लिख दिया ना, all facts may be proved by oral evidence, may be proved, लेकिन वो नहीं प्रूव कर सकता क्या, contents of documents और electronic records ओरल एविडेंस से प्रूव नहीं किए जा सकते, क्योंकि इनके लिए हमें प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस ही देना है, जो कि सेक्शन 61, 62, 63 में मेंशन्ड है। फिर ओरल एविडेंस भी डायरेक्ट होना चाहिए। यू नो व्हाट इट मींस, डायरेक्ट का मतलब जिसने देखा, जिसने सुना, वही कोर्ट में आके बताएगा कि क्या हुआ था, या जिसका कोई पर्टिकुलर ओपिनियन है, दैट पर्सन हैज टू कम टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड टेल व्हाट हिज ओपिनियन इज, राइट। तो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन क्या है, या मैंने क्या देखा। अगर मैंने देखा है ए को बी का मर्डर करते हुए, तो अगर मैंने जेड को रिसाइट किया वो सब कुछ चीजें, तो अगर जेड कोर्ट में जाएगा ना, दैट वुड बी अ हेयरसे पीस ऑफ एविडेंस विच इज नॉट एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट कहता है कि भाई जिसने देखा, जिसने सुना, वही कोर्ट में आके बताओ। दैट इज व्हाई वी से हेयरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। बट देन देयर आर सर्कमस्टांसेस जहां पर आपको अल्टीमेटली हेयरसे एविडेंस ही मानकर चलने पड़ेंगे, और वो सर्कमस्टांसेस कौन से हैं। तो हेयरसे एविडेंस जो है ना, वो एब्सोल्यूट रूल नहीं है, इट हैज सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट। एक्सेप्शंस लाइक
जैसे द फर्स्ट एक्सेप्शन आई वुड से इज डाइंग डिक्लेरेशन. Then the next exception is admissions, confessions. Then section 6 talks about res geste. तो ये सब exceptions हैं. यानी कि इन situations में आप सुनी सुनाई बात आकर कोर्ट में बताते हैं. So let's pick up dying declaration here. अब dying declaration में where is dying declaration mentioned? Section 32, all of you know. लेकिन क्या section 32 पूरा डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है? आंसर इज नहीं नहीं नहीं. देखो सेक्शन 32 जो है उसका जो क्लॉज 1 है ना, दैट डील्स विद द कॉज ऑफ डेथ एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन. तो सेक्शन 32 में व्हाट वी यूजुअली डू इन प्रैक्टिस इज हम सिर्फ 32 का 1 पढ़ते हैं और बाकी जो क्लॉजेस हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं. बट देन प्लीज रिमेंबर दिस कि हमें एग्जाम के लिए एक एक क्लॉज को पढ़ना मैंडेटरी है. राइट अब इसका हेडिंग देखो क्या कहता है. स्टेटमेंट बाय पर्संस हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस. राइट इट सेज, देखो स्टेटमेंट्स कैसे भी हो सकती हैं. स्टेटमेंट्स रिटन भी हो सकती हैं, वर्बल भी हो सकती हैं, साइंस भी हो सकते हैं, जेस्चर्स भी हो सकते हैं. सो स्टेटमेंट्स कैन बी एनी ऑफ एनी टाइप. Statements of relevant facts made by a person who is dead. So the statements are made by who is dead. Then the second category talks about or who cannot be found. तो जो मिल नहीं रहा. और the third category is who has become incapable of giving evidence. तो कोमा में है या कुछ और रीजन है कि वो एविडेंस नहीं दे सकता. Or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense, which under the circumstances of the case appears to the court to be unreasonable, are themselves relevant in the following cases. तो यहाँ पे आपको 4 रीजंस दे दिए गए. 4. पहला रीजन है कि भाई क्योंकि वो बंदा ही मर चुका है जिसकी स्टेटमेंट है. दूसरा, वो मिल नहीं रहा. तीसरा, he has become incapable of giving evidence. और चौथा, उसकी जो अटेंडेंस है it cannot be procured without an amount of delay or expense. So these are the 4 reasons which are mentioned here. Right? तो यहाँ पे आप देखो कि now the statement of these 4 categories becomes relevant in all these 8 clauses. In all these 8 clauses. But because we are talking about dying declaration here, because we are talking about dying declaration with respect to his death, that is dealt in section 32 clause 1. Right? तो उसकी डेथ का क्या कॉज है और वो क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसमें उसकी डेथ कॉज हुई, वो सब कुछ रेलेवेंट हो जाता है. राइट? तो जो उसकी स्टेटमेंट है ना, that is going to be considered as a relevant piece of evidence. Right? In fact, dying declaration can be considered, can be taken as a sole piece of evidence also in some cases where nothing else is available. Right? ये clear हुआ? तो अब देखो डाइंग डिक्लेरेशन को क्यों इतना महत्व दिया गया. वो इसीलिए दिया गया. डाइंग डिक्लेरेशन इज गिवन सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस. व्हाई? बिकॉज यू नो दी person who is dying, it is presumed that the person who is dying, the truth sits on the lips of the dying person. और इसकी ना एक मैक्सिम भी है, nemo mortuoris presumpta mentire. तो ये एक मैक्सिम है जो जिसका मीनिंग यही है that the truth sits on the lips of the dying person. ये आपको याद रखना है. ठीक है? तो इसी मैक्सिम पर बेस्ड है डाइंग डिक्लेरेशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो क्यों स्क्रूटनाइज करना, क्यों उसे इवैल्यूएट करना, क्यों उसको एग्जामिन करना जरूरी हो जाता है. तो देखो सबसे पहले तो ये याद रखो कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो हेयर से एविडेंस का एक एक्सेप्शन है. सेकेंडली, क्यों डाइंग डिक्लेरेशन को स्क्रूटनाइज करना जरूरी है? Because you know the person who gives the dying declaration, he is not anymore into existence. वो बंदा मर चुका है. Secondly,
उसकी जो स्टेटमेंट है वो ओथ पर नहीं होती। एंड थर्डली बिकॉज उसे क्रॉस एग्जामिन करने का भी हमें मौका नहीं मिलता। तो ये 3 वजह हैं कि क्यों हमें डाइंग डिक्लेरेशन को हम जब भी एडमिसिबल मानेंगे तो हमें उसे बहुत केयरफुली स्क्रूटनाइज करना होगा। और जैसा मैंने आपको पहले मेंशन किया कि सीन ऑफ क्राइम पे सिर्फ एक अक्यूज्ड और एक विक्टिम ही यूजुअली होते हैं। तो एनी थर्ड पर्सन डज नॉट हैव द चांस टू सी कि विक्टिम के साथ क्या हुआ। तो विक्टिम ने जो भी बताया वही रेलेवेंट हो जाता है फॉर द केस, राइट। ये क्लियर हुआ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि क्या ये जरूरी है कि डाइंग डिक्लेरेशन जिसने दी है वो बंदा मरा हो। भाई वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन होगी ही तभी जब वो बंदा मर चुका होगा। बिकॉज इफ द पर्सन इज नॉट डेड then his statement can be used for many other purposes. जैसे for example, like if suppose the person is not dead, then his statement can be used in section 6 of Indian Evidence Act. His statement can be used under section 8 of Indian Evidence Act. His statement can be used for corroboration or contradiction under section 157 or 145 of Indian Evidence Act. उसे टू रिफ्रेश द मेमोरी भी यूज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 159 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो डाइंग डिक्लेरेशन जिसकी है उसका मरना जरूरी है, तभी उसकी स्टेटमेंट को एज डाइंग डिक्लेरेशन यूज किया जाएगा। और अगर वो बच जाता है बहुत अच्छी बात है, फिर उसकी स्टेटमेंट सेक्शन 32 में नहीं, फिर उसकी स्टेटमेंट का पर्पस जो है वो अलग हो जाता है। इट विल बी यूज फॉर corroboration, contradiction. It will be seen as the facts which have formed the part of the same transaction. So all of that, it will be used for. ये क्लियर। अब डाइंग डिक्लेरेशन इंडिया में और इंग्लैंड में अगर इंग्लिश लॉ में देखें और इंडियन लॉ में देखें तो काफी सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में तो सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों में ही डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट है, लेकिन इंग्लिश लॉ में सिर्फ क्रिमिनल केसेस में डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट है। देन ऑल्सो इंडियन लॉ में आपका जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो सुसाइड फॉर्म में है या आपका मर्डर हुआ है तब भी रेलिवेंट है, लेकिन इंग्लिश लॉ में सिर्फ होमिसाइडल या होमिसाइड केसेस या सिर्फ मर्डर के केसेस में ही डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट होती है। देन इन इंडियन लॉ ये जरूरी नहीं कि जो बंदा मरा है जिसकी डाइंग डिक्लेरेशन है ही वॉज इन द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, उसे बेशक नहीं भी मालूम, लाइक पकला नारायण स्वामी का केस। अब उस केस में क्या फैक्ट्स हैं, वो बंदा जो है वो घर में खाली ये बताकर जाता है दैट आई एम गोइंग टू मीट माय फ्रेंड एंड आई हैव टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिम, तो मैं शाम तक या कल तक वापस आ जाऊंगा। तो यहाँ पर वो जो घर में अपने बताकर गया, was he at any point of time under the apprehension of death? The answer is no. But then in this case, the statement, the last statement which he made before his death was to his wife that he was going to his friend's place. तो इसी स्टेटमेंट को यूज किया गया as his dying declaration. Why? If you see the words carefully, it tells you the cause and the circumstances of the transaction which resulted in his death. तो ये वजह बताते हैं, ये वो सारे कारण बताते हैं, वो सर्कमस्टांसेस बताते हैं जिसमें उस व्यक्ति की डेथ हुई होगी, राइट। तो उसका एप्रीहेंशन में होना, अगर आपने कोई भी क्रिमिनल शोज देखे हैं, क्राइम शोज, तो उसमें आपने देखा होगा सीडीआर्स मंगवाते हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, किसको आपने लास्ट कॉल किया, किसको आपने लास्ट मैसेज किया, किसको आपने लास्ट व्हाट्सएप किया, और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आप किससे आखिर में मिले। तो ये सारी चीजें रेलेवेंट हो जाती हैं डाइंग डिक्लेरेशन में। और डाइंग डिक्लेरेशन की रेलेवेंस इसीलिए मानी जाती है क्योंकि ये माना जाता है दैट द पर्सन इज नॉट गोइंग टू लाई व्हेन ही इज डाइंग, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डाइंग डिक्लेरेशन आप देंगे किसको। अब आप खुद सोचो लॉजिकली, जो बंदा मर रहा है क्या वो ढूंढेगा?
कि भाई मैजिस्ट्रेट कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है, पहले मैं उन्हीं को दूंगा, या अपने रिलेटिव्स को ही दे सकते हैं। तो डाइंग डिक्लेरेशन किसी को भी दिया जा सकता है। इट कैन बी एनीबडी, इट कैन बी XYZ, इट कैन बी अ स्ट्रेंजर ऑल्सो, इट कैन बी एनीवन। पर रूल ये कहता है द डाइंग डिक्लेरेशन गिवन टू द मैजिस्ट्रेट इज द मोस्ट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। भाई लेकिन वो मैजिस्ट्रेट के पास आएगा कैसे अगर वो अपनी लास्ट ब्रेथ सड़क पे ले रहा है? तो इज दिस क्लियर? तो इट कैन बी मेड टू एनी पर्सन, पर माना ये जाता है दैट dying declaration given to any person in authority is considered to be a good piece of evidence, right? It has the highest evidentiary value. ठीक है। अच्छा, एक और चीज ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि dying declaration which is made to the police officer, it will not be hid by section 162 of CRPC, क्योंकि यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन इज इटसेल्फ एन एक्सेप्शन। आपने देखा होगा सेक्शन 162 का प्रोवाइजो मेंशन्ड है या एक्सप्लेनेशन में मेंशन्ड है या पैराग्राफ में मेंशन्ड है दैट सेक्शन 32 इज एन एक्सेप्शन टू द रूल एंड डाइंग डिक्लेरेशन गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर ऑल्सो बिकम्स रेलेवेंट। ठीक है। देन वन मोर थिंग, स्टेटमेंट्स विच आर मेड अंडर section 161 of CRPC, even that can be treated as dying declaration, and this was reiterated by the Supreme Court in Pradeep Bisoi versus State of Orissa। ये 2019 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, देखिएगा इसको। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैन FIR बी ट्रीटेड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन? तो जवाब है हाँ, FIR कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। व्हाई इट कैन बी ट्रीटेड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन? बिकॉज भाई मैंने FIR लॉन्च करवाई कि मेरे को किसी ने हर्ट कॉज किया और मुझे खतरा है उससे अपनी जान, तो यहाँ पर क्या होगा ना, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ माइन विल बी ट्रीटेड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन अगर मेरी कुछ टाइम के बाद डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर जिससे मुझे एप्रीहेंशन थी कि भाई मुझे खतरा है, तो उसके अगेंस्ट डेफिनेटली वो FIR यूज किया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स अप इज व्हाट इज द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग द डाइंग डिक्लेरेशन? दिस इज ऑल्सो क्वाइट लॉजिकल। The person to whom you are making the dying declaration is obviously not sitting with a pen and paper to record your dying declaration. तो इसीलिए कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है। क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में भी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जा सकता है, स्टोरी फॉर्म में भी बताया जा सकता है, साइंस और जेस्चर्स में भी बताया जा सकता है। इट कैन बी इन एनी विच वे, राइट? अब यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस लैंग्वेज में आपको डाइंग डिक्लेरेशन बताया गया है उसी सेम लैंग्वेज में जो डाइंग डिक्लेरेशन जिसको दिया जा रहा है, दैट पर्सन गोज टू द कोर्ट एंड टेल्स द कोर्ट इन द सेम लैंग्वेज, राइट? एंड स्पेशली व्हेन ही नोज दैट लैंग्वेज वेल। Then, as I've told you before, that the person who makes the dying declaration, he must be dead. ये तो मैंडेटरी है। अगर वो मरा नहीं है तो वो डेफिनेटली डाइंग डिक्लेरेशन की तरह यूज नहीं किया जाएगा, और उसके काफी सारे पर्पसेस हैं जिसके लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर लेट्स से डाइंग डिक्लेरेशन बहुत सारी हैं, देयर आर मल्टीपल्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, तो क्या होगा? अब भाई मल्टीपल ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन है तो अगर लेट्स से कोई भी मतलब दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद ईच अदर, तो यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, सारी की सारी डाइंग डिक्लेरेशंस को रिजेक्ट कर देगा और उसी डाइंग डिक्लेरेशन को क्रेडिबल मानेगा विच इज इन कॉन्सोनेंस विद द अदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक है, ये याद रहेगा। तो अब आप समझे कि सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि हियर से एविडेंसेस में जैसे एक एक्सेप्शन है डाइंग डिक्लेरेशन, तो वो क्यों है एक्सेप्शन? So I hope now you know that why dying declaration is considered as an exception to the rule of hearsay evidence, right? So now the third rule is also clear to all of you. ये clear हो गया? Okay, now proceeding further. Now let's talk about the other sections of Indian Evidence Act.
मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि 1 to 55 क्या है, 56 to 58 बता दिया। अब उसके आगे देखते हैं, एविडेंस एक्ट को आगे परयूजल करते हैं। सी ओके, yes, I told you that part 2 of Indian Evidence Act deals with on proof, and it tells you that the facts, the very first chapter of this part, chapter 3, tells you that the facts which need not be proved. तो मैंने आपको कहा 56, 57, 58 ये तीन सेक्शंस डील करते हैं कि कौन से फैक्ट्स आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। And then oral evidences, only two sections, 59 and 60. And then we have the next chapter in hand, that is of documentary evidences, 61 से लेके 98 तक जाता है ये, राइट। तो 61 से लेके 73A तक तो यही जनरल चलेगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। उसके बाद आपका एक नया लॉट यहाँ पे शुरू हो जाता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, which runs from section 74 to 78. And then again the next law starts, which talks about the presumption as to documents, 79 to 98, right? And then the last chapter of this lot, of this part, that is of the exclusion of oral by documentary evidences, chapter 6, section 91 to 100. So let me just brief these two parts first, and then I'll proceed to the third part. I told you part 1 has two chapters, chapter 1 and chapter 2. Part 1 talks about the relevancy of facts. Chapter 1 talks about preliminary things, and chapter 2 talks about relevancy of facts. So part 1 in total has how many sections? 1 to 55 sections, जिसे हमने डिवाइड किया दो चैप्टर्स में। चैप्टर 1 में है 1 to 4 और चैप्टर 2 में है 5 to 55। तो ये आपका पार्ट 1 है। अभी मैंने चैप्टर 2 का जो फर्दर सब डिविजन है वो नहीं करा। जैसे चैप्टर 2 हैज मेनी सब चैप्टर्स इन इट, जैसे कि अब आप देख ही लो एक बारी, यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर है वो है एडमिशंस। एडमिशंस एज यू ऑल नो इज डेल्ट फ्रॉम सेक्शन 70 टू सेक्शन 23, क्योंकि उसके बाद कन्फेशन शुरू हो जाता है 24 से लेके 30 तक, बिकॉज 31 अगेंस्ट डील्स विथ एडमिशंस। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट सब हेड है इसमें, स्टेटमेंट्स बाय पर्संस हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस। दिस इज इन 32 and 33. Another chapter is statements made under special circumstances, 34 to 38. Then how much of a statement is to be proved? Only one section, 39. Judgments of court of justice when relevant, 40 to 44. Opinions of third persons when relevant, 45 to 51. And the last is character when relevant, 52 to 55. तो अगर अब आपने अपनी कॉपीज में इसका भी सेग्रीगेशन करना है तो कैसे करोगे? सेक्शन 5 से लेके 16 तक तो जनरल है सब, देयर इज नो हेड टू इट, ओनली द हेडिंग इज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। अब रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में ही बहुत सारे सब हेड्स हैं, जैसे एडमिशंस। कन्फेशंस हेड नहीं है, पर यहाँ पे 17 से 31 एडमिशंस और कन्फेशंस ही इन अ वे डेल्ट। उसके बाद 32 में क्या है? 32 and 33 में स्टेटमेंट्स ऑफ पर्संस हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस, लिख लीजिएगा। देन 34 से 38 में मैंने आपको क्या बताया? 34 से 38 टॉक्स अबाउट स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, तो 34 से 38। और 39 एक ही लॉट है, एक ही सेक्शन है, हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, तो 39 हो गया, हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। 40 to 44 जजमेंट्स के बारे में बात करता है, 45 to 51 ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्संस के बारे में बात करता है, और 52 से 55 कैरेक्टर की बात करता है। तो 1 से 55 भी इस तरीके से लर्न करिएगा।
अब देखो ये क्यों हेल्पफुल है आप लोगों को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैरेक्टर पे, तो आपको पता है कि आपको लिखना है सेक्शन 52 से लेके 55 तक। अगर क्वेश्चन आएगा जजमेंट्स पे तो 40 से 44 लिखना है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर द सेक्शंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। अब शुरू हो जाता है पार्ट 2। अब पार्ट 2 का हेड क्या है? ऑन प्रूफ। और इसका चैप्टर 3 बात करता है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। यही था ना? दिस इज 56 to 58, राइट। अब आ जाइए चैप्टर 4 पे, विच इज ओरल एविडेंस। इसके सिर्फ 2 सेक्शंस हैं, 59 एंड 60। फिर चैप्टर 5 डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, 61 से लेके 90A तक। लेकिन इसमें बहुत सारे हेड्स हैं। 61 से 73A तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही है। 74 से 78 पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। 79 से 90A प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट्स हैं। इस तरीके से आप इसको याद करोगे, करेक्ट। फिर इसमें चैप्टर 6 बात करता है ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल by documentary evidence. This is 91 to 100. Very important. Usually this portion is left, पर ये portion बहुत important है एग्जाम के लिए। अब देखो इसमें है क्या, देख लेते हैं एक बारी। देखो सेक्शन 91 और 92 में तो आपको सिर्फ यही बताया गया है कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स ना देकर ओरल एविडेंस भी दे सकते हो। और 93 से 99 में आपको पेटेंट एम्बिग्विटीज और लेटेंट एम्बिग्विटीज के बारे में बताया गया है। पेटेंट एम्बिग्विटीज क्या होती हैं? जो एविडेंट है फेस पर ही कि ये डिफेक्ट है, और लेटेंट का मतलब हिडन डिफेक्ट्स। तो रूल्स क्या है कि जो पेटेंट एम्बिग्विटी है उसके लिए एविडेंस नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो लेटेंट एम्बिग्विटीज हैं उनके लिए एविडेंस दिया जा सकता है। ये क्लियर हो गया? राइट, क्लियर टू एवरीवन? ओके, देन प्रोसीडिंग फर्दर। अब आ जाइए लास्ट लॉट पर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, विच इज पार्ट 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट टॉक्स अबाउट द प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। राइट भाई, सब कुछ पता चल गया क्या देना है क्या लाना है। तो अब कोर्ट ये भी तो लेजिस्लेशन है, ये भी तो डिटरमिन करा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा वो प्रूव करने के लिए। तो सेक्शन 101 से लेके 111 तक आपका बर्डन ऑफ प्रूफ ही चल रहा है कि अगर आप ये एविडेंस या आप ये फैक्ट कोर्ट में लेकर आए हो तो आप ही प्रूव करो कि ये फैक्ट या ये एविडेंस क्या कहता है। 101 से 111, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद 111A से 114A तक प्रिजम्पशंस हैं। अब ये प्रिजम्पशंस में कुछ है मे प्रिज्यूम, कुछ है शाल प्रिज्यूम, और एक है कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। 112 सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है? प्रिजम्पशन एज टू द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड या बर्थ ड्यूरिंग मैरिज इज द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। अब देखो इसमें क्या लिखा है। Now when I say conclusive proof of legitimacy, you know what it means? See, this is actually, अच्छा पार्ट 3 में हम इसको स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, राइट। और इसमें जो चैप्टर है चैप्टर 7 that talks about burden of proof which runs from लॉट, तो देखो यही जाता है क्योंकि चैप्टर 8 में एस्टॉपल शुरू हो गया।
115 से 118, राइट। अब सुनिए, अब मैं आपको सेक्शन 112 थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो सेक्शन 112 में कहा बर्थ ड्यूरिंग मैरिज इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। व्हाई डू वी से दिस? क्योंकि देखो माना यह जाता है कि ए और बी अगर मैरिड हैं, अगर इन दोनों की शादी हुई राधा दिस पे, तो अगर बी शादी से पहले भी प्रेग्नेंट है बट शी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड आफ्टर गेटिंग मैरिड टू ए, तो यहां पे जो वो बच्चा पैदा हुआ है ना, he will be considered to be a legitimate child of A. So this is the conclusive proof of legitimacy because the child is born after marriage between A and B. But A has all the rights to question the legitimacy of the child. अब ये हो सकता है कि B A से ही प्रेग्नेंट है, या हो सकता है कि B किसी थर्ड पर्सन से प्रेग्नेंट है. So if B is pregnant through somebody else and A has a firm belief that he is not that the child born is not his child, he can go under section 12 of Hindu Marriage Act and get his marriage declared as void on the ground of pre-marriage pregnancy. कर सकता है वो, right? Another remedy with him is he can go under section 34 of Specific Relief Act and he can get a declaratory decree declaring the child as illegitimate, right? So he has all these remedies. तो एक तो हो गया ये क्वेश्चन, ये पॉइंट. दूसरा, अब लेट्स से दिस कपल ए एंड बी, इनका डिवोर्स हो जाता है. अब रूल ये कहता है 112 का कि डिवोर्स के अगर 280 दिनों में बच्चा पैदा हो गया, विच इज रफली 9 months 10 days, तो ये बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा. ठीक है, बिकॉज दिस इज यूजुअली द जेस्टेशन पीरियड, मैक्सिमम 10 months मान के चल लो आप, है ना. तो कोर्ट्स भी इतने लिबरल हो जाते हैं कि भाई ठीक है, हो सकता है कि जेस्टेशन पीरियड 9 महीने का 10 महीने हो गया हो, तो अगर बच्चा इस टाइम में पैदा हो गया है, प्रोवाइडेड द फीमेल हैज नॉट रीमैरिड, तो वो बच्चा ए का ही माना जाएगा. बट ए स्टिल हैज अ राइट टू रिबट. और वो क्या कहेगा रिबटल में? दैट वी नेवर हैड अ चांस व्हेन द चाइल्ड कुड हैव बीन बिगॉटन. तो ऐसा कभी वो प्राइवेट मोमेंट आया ही नहीं जज साहब, व्हेन द चाइल्ड कुड हैव बीन बिगॉटन. So if A proves this before the court of law, the child is going to be declared as illegitimate, right? और ये भी याद रखिए कि DNA जो है वो conclusive proof of legitimacy होता है. ठीक है, ये याद रहेगा. अब आ जाइए नेक्स्ट लॉट पर. एस्टॉपल मैंने आपको बता दिया, नॉट ओनली हियर बट सेक्शन 28 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेक्शन 43 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हम एस्टॉपल पढ़ते हैं, है ना. तो एस्टॉपल का मतलब क्या है? जैसे एक एग्जांपल देके बताती हूँ, दैट देयर इज नो एस्टॉपल अगेंस्ट अ माइनर. तो माइनर ने अगर कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन, कुछ भी रिप्रेजेंटेशन कर दी, डिक्लेरेशन कर दी, तो उसके अगेंस्ट उस रिप्रेजेंटेशन को यूज नहीं किया जा सकता. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट लॉट इज ऑफ विटनेसेस. भाई विटनेसेस कौन होंगे, या उन्हें क्या कंपेल या परमिट किया जा सकता है बताने के लिए, कौन सी कम्युनिकेशंस प्रिविलेज्ड है. प्रिविलेज कम्युनिकेशंस का मतलब कि भाई ये कम्युनिकेशंस जो है ना आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते कोर्ट में, राइट. तो विटनेस कौन हो सकता है? इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि विटनेस कोई भी हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग the questions which are put to him and he is able to form a rational judgment for the same, right. कितने witnesses हो सकते हैं, कितने भी ले आओ, है ना. accomplice कौन होता है? जिसने और जिसने मतलब दो या दो से ज्यादा जनों ने जिन्होंने क्राइम किया है वो accomplice होते हैं. तो accomplice की जो can accomplice be a witness, can accomplice give the will the testimony of the accomplice be relied upon? तो इसका आंसर है
कि भाई just because he has become an approver and he is trying to take the advantage of being an approver, he is trying to get his punishment lessened, that does not mean that we can throw his testimony altogether. So some part of it can be relied upon because he is the one who knows everything. तो कुछ है credibility के points, कुछ है कि हम उसके ऊपर rely नहीं कर सकते. There are many reasons. So we'll discuss all of this later on. अब witnesses को आपने अगर कोर्ट में बुलाया है, there has to be a purpose behind it and the purpose is the examination. और एग्जामिनेशन कैसे होता है? देर आर 3 एग्जामिनेशन और ऑर्डर क्या है? एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन इज डन बाय योर ओन लॉयर, क्रॉस इज डन बाय द एडवर्स पार्टी, और जो भी नए फैक्ट्स आते हैं क्रॉस में, वही फैक्ट का री एग्जामिन करता है आपका खुद का वकील. ठीक है, ये क्लियर हुआ? फिर अब ये सब कुछ आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है. And the last chapter is chapter 11, which talks about of the improper admissions and rejection of evidence. तो ये याद रखना है कि अगर improper admission हुआ है या कोई evidence आपने reject कर दिया है, if it has not caused the failure of justice, तो वहां पर नया ट्रायल नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो अब आप देख लो पार्ट 3 को कैसे डिवाइड करना है. 101 से 114A, 115 से 117, 118 से 134, 135 से 166 एंड 167. तो ये आपके पार्ट 3 के हैं. ये था बर्डन ऑफ प्रूफ, ये है एस्टॉपल, ये है विटनेसेस, ये है एग्जामिनेशन, और ये है नो न्यू ट्रायल फॉर improper admissions and rejection of evidences. So this is how we are going to discuss the whole of Indian Evidence Act, and I hope each and every bit of what we discussed in today's lecture is clear to everybody. तो अब आप एविडेंस एक्ट को इस तरीके से पढ़कर समझने की कोशिश करिएगा, and then we will discuss the rest of it in the regular sessions. All right, so I hope this is clear to everyone. अच्छा, और एक चीज भी याद रखिए. अब जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए कहा जाता है कि जैसे मैंने आपको कहा सर जेम्स स्टीफन ने ड्राफ्ट किया, तो क्वेश्चन है कि क्या इससे पहले भी कोई अटेम्प्ट किया गया था? तो देखिएगा 1867 में हेनरी मेन ने इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट करने की कोशिश की थी, विच वॉज रिजेक्टेड ऑल टुगेदर, एंड द रीजन बिहाइंड इट वॉज कि उन्होंने डिट्टो कॉपी कर दिया था इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस को. तो इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस क्योंकि इंडियन सिचुएशंस को सूट नहीं करता, so that is the reason why that we follow the code, the act which has been drafted by Sir James Stephen. Right? Is it clear to everyone? तो अब आप देखिएगा इसका अरेंजमेंट क्या है. देखिए सेक्शन 1, सेक्शन 2 तो रिपील्ड ही है. 3 में मैंने आपको इंटरप्रिटेशन. तो आज आप क्या करिएगा, the other name of Indian Evidence Act is Act number 1 of 1872, right? फिर this got the assent of the President on 15th March 1872, and the date of enforcement is 1st day of September 1872. So all these things, little things you have to remember, and this is how you are going to learn each and everything of the act, right? I hope it is now clear. Thank you so much, and we'll meet in the regular sessions now. Thank you. Thank you very much for watching this video. Like this video, subscribe to our channel and share it with your friends. And don't forget to press the bell icon to receive real-time updates of our lectures. Thank you.